5 years law or 3 years law? 5 years. Yours is 3 years. Pursuing from Lucknow University, main campus. Okay, you? Which center? They have a different campus, right? Which campus? Jankipuram. You? Jankipuram. Yours 3 years or 5 years? 3 years. Last semester. Today we are here to have a little insight about the criminal law, that what exactly is criminal law, how important is the subject. Since you have had a motive to clear the judicial service examination, and this is an outward act, your intention showing that yes, you really want to clear because you are here for attending the demo class. Have you read CRPC any time before? CRPC is little technical. You find it technical? Technical? Right. Have you ever thought that why do we need a criminal law? Since you are here for having a demo class, you have an intention to clear a judicial service examination, and criminal law is one of the very very important subject that one must have a deep understanding of that subject. It's not that कि आपको superficially पता हो, it's not that कि आपको depth ना पता हो, it's not that कि आपको procedural aspects ना समझ में आते हो. इससे थोड़े बहुत नॉलेज से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप जुडिशियल ऑफिसर बन रहे हैं और आपको पूरे क्रिमिनल प्रोसेस का एक बहुत ही अहम हिस्सा बनने वाले हैं आप, राइट? सो यू शुड नो दैट फॉर व्हाट यू हैव बीन कॉल्ड हियर, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ अदर पीपल एंड व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ देयर लॉ विल मेक अ डिफरेंस बाद में. Abhi will understand the subject in depth, right? So you all of three and the people watching the class online, I cannot see the numbers who all are watching online. Can you please tell me the number of the students watching the class online? They are right. So criminal law, and especially when I talk about CRPC, it is one of the most important subject. I would like to introduce myself. My name is Varsha Singh, and I'm a law graduate from Campus Law Center, Faculty of Law, University of Delhi. I post-graduated in law from Campus Law Center, Faculty of Law, University of Delhi. I'm running the Dhehe Law, as in I have been given a position of an academic director over here. I will be your criminal law teacher throughout your journey of preparation, that is 16 months, 14 to 16 months. Whenever we read any subject, see, except the constitution, whatever law that has come to us, they are the parliamentary laws, isn't it or not? The Constitution of India was made by the Constituent Assembly. So constitution is considered to be the grand norm. What it is? Grand norm. Have you read the jurisprudence? The concept of grand norm is given by Professor Kelsen. It says that there will be one grand norm and all the laws have to pass the test of grand norm. So in India, if we consider what is grand norm, then Constitution of India is considered to be the grand norm. So whatever law, जितने भी कानून बनाए गए हैं, they all have to take the test of the Constitution. Clear? See, we have seen the development in the CRPC. I'm not going into IPC. IPC is the substantive law. It tells it that what act, what series of act, what omission, that is illegal omission, what series of omission constitute as an offense, right? And for that particular offense, what is the punishment? It doesn't tell about that what is the procedure where the FIR is lodged, what will be the procedure of investigation, what the police will do, how the cognizance proceeding will move, how the trial will move. IPC has nothing to do with it. Right? Imagine a situation that you have only a substantive law without a procedural law. देयर कैन बी अ सिचुएशन, ऐसा हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपको एक अधिकार दिया जाए और उस अधिकार को इन्फोर्स करने के लिए हमारे पास प्रोसीजरल लॉ ही ना हो, हमारे पास सीपीसी ही ना हो. क्या हम ऐसे सिचुएशन का इमेजिनेशन कर सकते हैं? आपको आईपीसी में बता दिया गया है कि वन हु कमिट्स द मर्डर विल हैव टू फेस द पनिशमेंट. द पनिशमेंट कैन बी डेथ सेंटेंस, लाइफ इम्प्रिजमेंट, इम्प्रिजमेंट अप टू 10 years, right? And but we don't know that who will get punishment and what procedure is followed. So we can say that there is a concept in the criminal law, ubi just ibi remedium. Where there is right, there has to be remedy. So right is given in the substantive law. Substantive law gives you the right, and to enforce those rights, we need to have remedy.
सो प्रोसीजरल लॉ, चाहे वो सीपीसी हो चाहे वो सीआरपीसी हो, दोनों केसेस में वी नीड टू हैव अ प्रोसीजरल लॉ टू enforce the rights which have been given in the substantive law. Clear? So whatever law is made by the parliament, that has to take the test of the constitution. Now question is that we have seen the development. Can you recall 1800 में हमारे पास, 1800 में हमारे पास ओल्ड सीआरपीसी था, 1973 में हमने नई सीआरपीसी ड्राफ्ट की, 2024 में हमने भारतीय नागरिक संहिता का, सुरक्षा संहिता का हमने प्रपोज किया कि हमें एक हमारे जैसा प्रोसीजरल लॉ चाहिए. अब 1860 का आईपीसी 2024 तक सही से काम कर रहा था. 2024 में भी जो नया आपका एक्ट आने वाला बीएनएस, उसमें भी बहुत चेंजेस नहीं है. यू विल नॉट फाइंड मोर चेंजेस. लेकिन व्हाट वाज द नीड दैट वाज फेल्ट बाय द पार्लियामेंट टू हैव न्यू सीआरपीसी? What does the CRPC do? We should understand, before we go into reading any subject, we should know the legislative intent, we should know the jurisprudential analysis of the subject, which is very, very important. That now the question is, what does the CRPC do? The first question, that what does the CRPC do? What was the need of having a new CRPC in 1973? And how does the parliament has framed the new CRPC and enforced it on 1st April 1974? It's a main primary question. So what does the CRPC do? CRPC does the collection of evidences. What it does? Collection of evidences, initiation of proceedings, conducting trial. I'll make you write everything in the last. Okay? And conducting the subsequent proceedings. Isn't it? Before we go anything, we need to understand that whatever subject we are going through, that subject has to take the test of the constitution. So if somebody asks you that what is the purpose of a CRPC, then the first purpose is the collection of evidences. In the CRPC, we have seen that who is primarily responsible for collecting the evidence? It is police officer. The primary duty of doing the investigation is given to the police officer. Initiation of proceedings. Initiation of proceedings. So after the investigation is done, the judicial proceeding begins. It is in the form of the inquiry, it is in the form of the trial. And in the course of the investigation, the accused has given certain rights. And the right, if it is a bailable offense, you will get the bail as a matter of right. If it is a non-bailable offenses, you will not get the bail as a matter of right, but you will get the bail as a matter of discretion of the court. So this is conducting of trial. Once the inquiry is over, the trial will begin. And the subsequent proceeding in the case. Suppose that you are a first-time offender. You are a first-time offender, so there is a chances that you will be given a pardon under section 306. If you are an accomplice, you are an accomplice. The testimony of the accomplice is not always untrustworthy. If he is corroborated in material, the testimony given by him can be used in the trial. So this is all is done by the CRPC. Now the question to you is, why do we need these proceedings? क्यों करना? कि सिर्फ क्या हम एक फॉर्मेलिटी के तौर पे इलेक्शन कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस कर दें, प्रोसीडिंग इनिशिएट कर दें, ट्रायल कंडक्ट कर दें? नहीं. The purpose of the CRPC, exact purpose, to have proceeding, and that proceeding should be such that justice should be delivered. We need to have mechanism. एक ऐसा mechanism so that the justice should be delivered in an effective manner. If justice is not delivered in the effective manner, then there is no use of CRPC. Exactly. 1800 के CRPC में कुछ डिस्क्रिपेंसी रही होगी, तभी तो हमने ये डिमांड किया था कि हमें नए CRPC की जरूरत है. हमें एक ऐसे मैकेनिज्म की जरूरत है जिससे कि सिर्फ जस्टिस डिलीवर ना हो, जस्टिस इफेक्टिव मैनर में डिलीवर हो. क्यों? क्योंकि जो क्राइम होता है, दैट इज कंसीडर्ड टू बी रॉन्ग अगेंस्ट द होल सोसाइटी. Though the offense is committed towards a particular individual, but entire society as a matter of policy gets affected by that crime. So we need to have such mechanism, we need to have a such CRPC which gives us the mechanism so that the justice should be delivered in an effective manner.
Why? That a crime is considered to be wrong against the whole society. So one side, societal interest, society want justice, society is less aware, society is less interested about the procedure. Society जैसे ही मालूम चलता है कि a particular crime has been committed and the crime is heinous, it has got the potential to shake the societal conscience. Society wants justice, society wants that the particular accused should be found out and he shall be punished. Society is less concerned about the investigation, inquiry, trial. No, society is not. So, one side, we have a societal interest. Why societal interest? Because crime is considered to be wrong against the whole society. अब एक अभियुक्त है, एक इंडिविजुअल अक्यूज है, तो उसका भी तो इंटरेस्ट है ना. ये कैसा इंटरेस्ट है? ये इंडिविजुअल इंटरेस्ट है. कैसा इंटरेस्ट है? इंडिविजुअल इंटरेस्ट. अब अब दो तरह की बात आ गई. एक तरफ सोसाइटल इंटरेस्ट, सोसाइटी कहता है कि अक्यूज शुड बी फाउंड आउट एंड ही शैल बी पनिश्ड. इंडिविजुअल अक्यूज कहता है कि सी देयर इज एन एलिगेशन अगेंस्ट मी, आई एम स्टिल नॉट फाउंड गिल्टी बाय द अप्रोप्रिएट फोरम, आई हैव टू गो टू द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोसीडिंग्स. You conduct an investigation, you conduct an inquiry, you conduct the trial, and after conclusion of the trial, declare me that I am accused, I have committed the offense. So my rights, which I have been given by the Constitution of India, cannot be denied in any circumstances. Up the situation before the court. Justice is delivered by the court. The court is the forum which deliver the justice. CRPC तो एक procedure बताता है, but actually the justice is delivered by the court. अब the court, while delivering the justice, has to balance. What balancing? Societal interest and the individual interest. अब society wants justice, that cannot be ignored. Why? Because the crime is considered to be wrong against the whole society. Individual interest, that is accused, he have been given certain basic rights and which has been guaranteed to him by the Constitution of India in the form of Article 14, Article 19, Article 21. I have a right to life and personal liberty. My right to life and personal liberty cannot be curtailed except according to procedure established by the law. Just go into the words, except according to procedure established by the law. A procedure established by the law, it says that my personal liberty will be curtailed. I'm ready to curtail my personal liberty. But hence I am not proven guilty. I have certain basic rights. Now courts. A court has to deliver the justice. Court has to develop a mechanism through which there has to balancing has to be done. And this balancing is done by the court established through the CRPC. That's the basic fundamental purpose of a criminal law, to balance the societal interest and the individual interest. And that balancing is done by the court established through the CRPC. Clear? If somebody asks you now that what is the purpose of criminal law, you will be in capacity to answer. Now, why do we need a 1973 का CRPC? Because the rights, see, संविधान इवॉल्व कर रहा है, मानते हैं आप लोग? इवोल्यूशन हो रहा है. कल तक जो फंडामेंटल राइट नहीं था, आज वो फंडामेंटल राइट है ना? कल तक जो फंडामेंटल ड्यूटी था, आज वो फंडामेंटल राइट है. ऐसे बहुत सारे अधिकार हैं जो हमें इवोल्यूशन के थ्रू मिलता है. इवोल्यूशन कैसे होता है? हम कुछ जोड़ते हैं, कुछ घटाते हैं, जिससे कि हमारे अधिकार और एक्सप्रेसिवली मेंशन किए जाएं. तो सीआरपीसी जो इवॉल्व हो रहा था वो कुछ इस तरह से इवॉल्व हो रहा था कि कुछ नए प्रोविजंस हमने जोड़े जिससे कि राइट्स और एक्सप्रेस हो गए और मैनिफेस्ट हो गए और अक्यूज के अधिकार को और एक्सप्रेसली मेंशन किया गया. क्योंकि होता क्या है कि जब हमारे पास पावर होता है, सी एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली. You remember this jargon? Absolute power corrupts absolutely. So police have been given so much discretionary power that to have a check and balance, the court has given certain powers. The general rule is that the court will never interfere in the process of investigation. But if the court finds that the police is playing any kind of a foul play, in those cases, the court can definitely interfere in the process of investigation. So अब 1973 में जब ड्राफ्ट बन रहा था सीआरपीसी का, भारत सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट दिया. कैन यू रिकॉल 1973 का लैंडमार्क जजमेंट? वेरी लैंडमार्क जजमेंट, कैन नॉट बी इग्नोर्ड. कैन यू रिकॉल? हिज हॉलीनेस गलपत्री
His Holiness Galpatru, Keshwananda Bharati versus State of Kerala, and where the Supreme Court has made it very clear that there are certain essential principles of the Constitution which cannot be ignored in any circumstances. Any circumstances. CRPC was into the process of development. It came into force. The bigger challenge before the parliamentary committee was that CRPC has to pass the test of the constitution, that certain basic essential features in the form of the fundamental rights should not be violated in any circumstances. The new CRPC, what is the basic essential feature when you talk about the CRPC? You cannot ignore the principle of human dignity. You cannot ignore the principle of natural justice. What is the principle of natural justice? Audio alterum partem, you need to hear both the sides. And dusra, nemo judex causa non sua, that nobody can be judged in his own cause. So new CRPC was in the line of the constitution. There was no challenge before the new CRPC. The first amendment to the CRPC after 1974 came into year 1978. Can you recall the case? It was Menka Gandhi. It was Menka Gandhi versus Menka Gandhi versus Union of India. It was Menka Gandhi versus Union of India. What happened in this case? This case was that her passport was impounded. It was a big. This is the case where the word personal liberty has interpreted in a very broader manner. Speaking through Justice P. N. Bhagwati in this case, it was the seven judges benches of the Supreme Court. See, why I'm telling you the seven bench judges, 1978 citation, judgment was delivered by Justice P. N. Bhagwati, because this will give you an edge in the examination. A simple student writing in the main exam, Menka Gandhi versus Union of India, and you at the same time writing Menka Gandhi versus Union of India, AIR 1978, judgment delivered by Justice P. N. Bhagwati, definitely going to give you an edge over in the examination over the other students. So you have to inculcate the practice of writing and mentioning the judge's name, the justice bench. ये सब जितना याद है उतना लिखो आप. इस केस में क्या हुआ? Her passport was impounded while she was traveling to abroad, and the reason given was the security reason. And say that it is according to the government security reason, your passport is impounded, and this is the law which is made by the parliament. She moved to the Supreme Court, and the Supreme Court said that whenever any procedure is made by the parliament, that procedure has to be just, it has to be fair, it has to be reasonable, it should be non-arbitrary. You cannot make any procedure and say that this is a law made by the parliament. Every law has to be just, fair, and reasonable. The word procedure established by the law has to be interpreted in the line of just, fair, and reasonable. Right. Just after this case, there was an amendment that was made by in the CRPC to make certain procedure to be just, fair, and reasonable in 1978, which came into enforce from 1979. After this amendment, there's an again. See, I'm telling you how we are evolving. Look the evolution. 1974 में the CRPC came into force. There was no problem till 1978. In 1978, we find the first flaws, and there was an amendment in Menka Gandhi. In India, that's a practice. There's a first case and then the amendment. In just after Menka Gandhi case, a very landmark judgment came before the Supreme Court. That is D.K. Basu versus State of West Bengal. And in this case, the right of the accused were given expressly. That there are certain rights which have been guaranteed to the accused and which cannot be denied. You can see the amendments in the 90s, 94 के लगभग 96 के लगभग बहुत सारे जो है अमेंडमेंट्स हुए, जैसे कि अक्यूज के पास राइट्स हैं कि वो नॉमिनेटेड पर्सन से मिल सकता है. जैसे मान लीजिए आपने को अरेस्ट किया गया, अरेस्ट के 24 आवर्स के बाद यू हैव टू बी प्रोड्यूस बिफोर द मैजिस्ट्रेट एक्सक्लूडिंग द जर्नी ऑफ द टाइम. जो भी आपका जर्नी टाइम होता है उसको एक्सक्लूड करके. अब अगर किसी अक्यूज को अरेस्ट किया गया है तो उसके नॉमिनेटेड पर्सन जो भी वो नॉमिनेट करता है उसको इन्फॉर्म किया जाएगा. अगर कोई बेलेबल ऑफेंस है तो उसको बताया जाएगा कि यू कैन बी गिवन बेल बाय द थ्रू द पुलिस स्टेशन और यू कैन अप्रोच टू द कोर्ट. आपको लॉयर से मिलने जाए, आपके हेल्थ एंड सेफ्टी का ध्यान रखा जाएगा, आपके खाने का ध्यान रखा जाएगा. जो भी पुलिस अरेस्ट करेगा वो अपना क्लियर आइडेंटिफिकेशन बियर करेगा. बहुत सारे ऐसे राइट्स. कंट्रोल रूम में हम बताएंगे कि कितने लोगों को अरेस्ट किया गया है कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए. तो अक्यूज के जो अधिकार थे उनको और एक्सप्रेसिव किया गया. 2003 में मैलिमथ कमेटी रिपोर्ट बनाई गई.
ये मैलिमथ कमेटी, उसके बाद अमेंडमेंट जो हुआ 2003 में, मैलिमथ कमेटी रिपोर्ट बनाई गई और कहा गया कि हमारे देश में प्ली बार्गेनिंग का कंसेप्ट आना चाहिए. You understand plea bargaining? In India, basically it is sentence bargaining. In US, it is charge bargaining. What is a plea bargaining? Plea bargaining, that accused has been convicted, not convicted, the trial of the accused has already commenced. He has been accused of an offense which is not punishable more than 7 years. He is an accused of an offense where he has not committed any offense against the woman or the child below the age of 14 years. So police has submitted its police report before the magistrate for taking the cognizance, and the inquiry proceeding has already commenced, and the trial is pending in the court who has taken the cognizance. Trial is pending, where the accused will put the application before the court. You see, I want a sentence bargaining. It's not a charge bargaining. Charge bargaining हमारे देश में नहीं होता. चार्ज पे तो बहस होती है, और चार्ज पे बहस होती है, यही बहस तय करता है कि हमारे देश में बैलेंसिंग होता है सोसाइटल और इंडिविजुअल इंटरेस्ट का. ये तो अगर डिस्क्रिशनरी पावर होता तो जो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा उसी पे थ्रो हो जाता चार्ज. लेकिन अक्यूज को अधिकार दिया जा रहा है एट द स्टेज ऑफ चार्ज बार्गेनिंग कि आप आइए और अपने एविडेंसेस, जो प्रोसिक्यूशन ने जो एविडेंसेस प्रोड्यूस किए हैं उसका एग्जामिनेशन नहीं होता, बट जो मटेरियल जो सफिशिएंट होता है उसके बेसिस पे कोर्ट चार्ज फ्रेम करता है. At the same time, the accused is given an opportunity to present his own case, right? And if the court is satisfied at that stage also, court आपको discharge कर देता है. This is the beauty of the art, beauty of the CRPC, that it balances the right. अब we were going through the investigation. अगर आपका ट्रायल के लिए केस पेंडिंग था, आप कोर्ट में एप्लीकेशन लगाते हो कि आई वांट अ सेंटेंस बार्गेनिंग. अगर वो पुलिस रिपोर्ट का केस होता है, मतलब पुलिस रिपोर्ट का मतलब होता है, मैं अभी बताऊंगी आपको, जिसमें कि इन्वेस्टिगेशन करती है पुलिस. तो इन्फॉर्मेंट, विक्टिम, आईओ, इन सबको नोटिस जाता है कि ये जो अभियुक्त है इस केस का, अक्यूज है, वो प्ली बार्गेनिंग चाहता है, सेंटेंस बार्गेनिंग चाहता है. और दूसरे साइड से फिर कौन आता है? विक्टिम, विक्टिम का वकील, ठीक है, ये, और पब्लिक प्रोसिक्यूटर. कोर्ट कहता है कि देखिए हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, मेरे सुपरविजन में सब कुछ होगा, लेकिन आप इसको म्यूचुअल सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन के तहत सेंटेंस बार्गेनिंग करिए. जैसे कुछ 1/4 हो जाता है सेंटेंस, वो कुछ गाइडलाइंस हैं, और जिसके बदले में अगर सेंटेंस कम हो रहा है उसके बदले में अक्यूज विक्टिम को क्या करेगा? कॉम्पेंसेशन देगा. क्या देगा? कॉम्पेंसेशन देगा. और जो आपका म्यूचुअल सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन के बाद आपका जो आप जिस कंक्लूजन पे पहुंचोगे वो उसका अपील नहीं हो सकता, वो अपीलेबल नहीं है. उसके लिए आप एसएलपी फाइल कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 136. There are certain you will read when you will start CRPC. So this is the beauty of the beauty of the amendments. 2003 में कमेटी बनी, 2006 में आपको पता होगा प्ली बार्गेनिंग, 2005 में अमेंडमेंट होता है, फिर 2006 से प्ली बार्गेनिंग कंसेप्ट हमने 20A चैप्टर में 21A चैप्टर में हमने प्ली बार्गेनिंग एज एन कंसेप्ट जोड़ दिया. उसके बाद सूबे सिंह हियरिंग ऑफ बेल एप्लीकेशन का अमेंडमेंट हुआ. फिर 2009 में बहुत सारे लक्ष्मी का केस आया, लक्ष्मी वर्सेस स्टेट, जिसमें कि एसिड अटैक को हमने ऑफेंस बनाया. विक्टिम कंपेंसेशन स्कीम हमने सीआरपीसी में लॉन्च की, रिहैबिलिटेशन किया. उसके 2012 में निर्भया केस हुआ. 2012 में निर्भया केस के बाद जेएस वर्मा कमेटी की रिपोर्ट बनी, और जेएस वर्मा कमेटी के रिपोर्ट के बाद फिर 2018 में एक इंसिडेंस हुआ, फिर हमने अमेंडमेंट किया, और फाइनली अब हम नया एक्ट लेके आ रहे हैं. इन सारे अमेंडमेंट्स का सिर्फ एक ही फंडामेंटल प्रिंसिपल है, टू बैलेंस द सोसाइटल इंटरेस्ट एंड द इंडिविजुअल इंटरेस्ट. और जो राइट्स दिए गए हैं एक्यूज को वो और एक्सप्रेसली मैनिफेस्ट हो, और बैलेंसिंग करते समय कोर्ट किसी के भी राइट्स को वायलेट ना करे. दैट इज द बेसिक एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ. क्लियर? Today we'll be discussing a very good I'm not audible. Am I audible right now? ऑडिबल बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सुनाई नहीं दे रहा है. आ रहा है? अब प्लीज वन ऑफ यू कैन मैसेज मी. यस मैम, आई एम ऑडिबल. ओके, सी, ठीक है. थैंक यू रवि कुमार. इफ आई एम ऑडिबल, मैनिफेस्ट बैलेंस का एग्जाम्पल आप थोड़ा सा लिखोगे क्या? लाइक यू वांट टू राइट इट समथिंग लिटिल बिट? ठीक है. आपको कुछ एग्जाम्पल बताती हूँ जो मैं बैलेंस की बात बता रही थी. जैसे हियरिंग ऑन बेल एप्लीकेशन. आपको पता है बेल एप्लीकेशन पे जब हियरिंग होता है तो कैसे होता है?
बेल एप्लीकेशन, दो तरह के बेल्स होते हैं, एक होता है बेलेबल ऑफेंस और एक दूसरा होता है नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। तो जो नॉन बेलेबल, जैसे हम आपने बेल लगाया, हियरिंग ऑन बेल एप्लीकेशन, मैं आपको ये बता रही हूँ कि कैसे हम जो है बैलेंसिंग करता है कोर्ट। आपने कॉलेज में पढ़ा होगा सीआरपीसी कि 437 टॉक्स अबाउट बेल इन नॉन बेलेबल, इन दी ओल्ड सीआरपीसी 437 टॉक्स अबाउट बेल इन नॉन बेलेबल केसेस। क्या कहता है कि बेल इन नॉन बेलेबल केसेस का मतलब ये नहीं कि आपको नॉन बेलेबल केसेस में बेल ही नहीं मिलेगा। अब अब कोर्ट कैसे करता है, अगर वो बेलेबल ऑफेंस है तो आपको बेल एज ए मैटर ऑफ राइट मिल जाएगा। और जब राइट होता है, एक व्यक्ति का अधिकार और दूसरे व्यक्ति की ड्यूटी बन जाती है। याद है ये कंसेप्ट जूरिस्प्रूडेंस में, right and duty are correlative to each other. It is an Hofaldian principle of law. Which principle? Hofaldian. Hofild एक jurist थे, उनका प्रिंसिपल था कि एक व्यक्ति का अधिकार और दूसरे व्यक्ति की कर्तव्य बन जाता है, ड्यूटी बन जाता है। अब हेयरिंग ऑन बेल एप्लीकेशन में क्या होता है कि अगर बेलेबल ऑफेंस है तो यू विल गेट अ बेल एज एन मैटर ऑफ राइट। इफ इट इज नॉन बेलेबल ऑफेंस, what does it mean? You will not get the bail? No, you will get the bail not as a matter of right, but as the discretion of the court. Ab discretion should be exercised with a wisdom. Discretion should always be exercised with wisdom. आपके पास discretion और आप उसको wisdom के साथ इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो वो discretion बेकार है। अब डिस्क्रिशन लेते समय कुछ पैरामीटर्स होते हैं कोर्ट की कि भाई ये अक्यूज क्या फर्स्ट टाइम ऑफेंडर तो नहीं है, पहला, क्या ये महिला तो नहीं है, तीसरा, क्या क्या चांसेस है कि ये विटनेसेस को थ्रेटन करेगा, क्या चांसेस है कि ये भारत छोड़ के चला जाएगा, क्या कितने चांसेस है कि ये इन्फ्लुएंस करेगा विटनेसेस को, और कितना चांसेस है कि वो इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल में कोर्ट के सामने पेश होगा जब भी इसकी जरूरत होगी। और अगर सारे पैरामीटर्स फिट हो जाते हैं, सो देयर इज नो प्रॉब्लम विद द कोर्ट टू गिव द बेल। व्हाई? बिकॉज इन इंडिया वी बिलीव इन द कंसेप्ट ऑफ बेल एंड नॉट द जेल। हमारे देश में जो कंसेप्ट है दैट इज द कंसेप्ट ऑफ बेल एंड नॉट द जेल। जो आपके एग्जाम में ये सवाल आता है कि डिफाइन या क्लैरिफाई या इलुसिडेट द कंसेप्ट ऑफ बेल, इन इंडिया वी हैव अ कंसेप्ट ऑफ बेल एंड नॉट द जेल। यस, इट इज। You cannot curtail somebody personal liberty except there is a possible reason. Even if article 21 has given you a right to curtail my personal liberty, but it should be with reason. It should always be reasoned order, legitimate order, right? So in non-bailable cases also. So now in this case what happens? अब court has to balance, एक तरफ सोसाइटल इंटरेस्ट और दूसरी तरफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। और कोर्ट को लगता है कि इसको बेल देने में कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, क्योंकि सोसाइटी को बेसिकली क्या चाहिए? न्याय चाहिए। क्या चाहिए? न्याय चाहिए। अब आपको पता है जो क्रिमिनल लॉ होता है इट्स अ मैटर ऑफ पब्लिक लॉ, और जब कोई चीज पब्लिक लॉ होता है सो इट प्रोटेक्ट्स राइट इन रेम। पढ़ा है कॉन्ट्रैक्ट में, इट प्रोटेक्ट्स अ राइट इन रेम, मतलब आई हैव अ राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, isn't it? Nobody can hurt me, nobody can outrage my modesty, nobody can slap me, is it? Nobody can take my property because I have been given a right that is available against the whole world. If you violate my right, I will sue you. I will sue you. Now the question is that कि जो कंपेंस, अब सोसाइटी को तो न्याय चाहिए, जैसे ही अक्यूज जेल में जाता है सोसाइटी को न्याय मिल गया। लेकिन कई ऐसे केसेस होते हैं जहां पे विक्टिम को कंपेंसेशन मिलता है। तो कई ऐसे मामलों में जो पब्लिक लॉ होता है, पनिशमेंट के मामले में वो राइट एंड रेमेडी इन रेम होता है, और कंपेंसेशन के मामले में वो रेमेडी इन पर्सोनम हो जाता है। पर्सोनम का मतलब किसी व्यक्ति को रिलीफ मिल रहा है और किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के खिलाफ। राइट इन पर्सोनम एंड रेमेडी इज ऑल्सो इन पर्सोनम। अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करें तो इट इज अ राइट इन पर्सोनम, बिकॉज अगर ए ने बी का कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक किया है तो बी को ही कंपेंसेशन मिलेगा, और किससे लेगा? ए से ही लेगा, राइट? तो क्रिमिनल लॉ क्या है? इट इज अ मैटर ऑफ पब्लिक लॉ, इट प्रोटेक्ट्स द राइट इन रेम, but there are certain cases where the victim is entitled to get the compensation. In that cases it becomes the remedy in personam and right is in rem. Clear? Right is in rem and the remedy is in personam. Now the question is that अब ये हो गया, अब कोर्ट को बेल देना है नॉन बेलेबल केस में, तो कोर्ट क्या करेगा? बैलेंस करेगा। क्या करेगा? बैलेंस करेगा। और बैलेंस करते समय ये ध्यान रखेगा कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डिलीवर्ड,
It should be delivered in an effective manner. It should be delivered in an effective manner. That is the only and only work that is assigned to the court. What is the aim and the goal of the court? Suppose that you're going to be a judicial officer tomorrow. What is your aim? To give the justice? Justice should not only be seen to be given, it should actually be given. And actually be given to what stage? Only when after you will follow the procedure. The moment you will follow the procedure, you yourself will be very happy that I have followed the exact procedure. Because the CRPC is made by the brilliant minds, right? And in any case, the aim and the goal of the court is to give the justice. अब now court will balance and codify that in the non bailable of. कई बार आपने सुना होगा कि बड़े हीनियस क्राइम में बेल मिल गया और आपको गुस्सा भी आता होगा कि बताओ यार इसको तो बेल ही मिल गया, कैसे को मिलना बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए था. तो ये हम नहीं डिसाइड करेंगे, हम प्रॉपर प्रोसीजर फाइल करेंगे और कोर्ट आफ्टर फॉलोइंग द प्रॉपर प्रोसीजर अगर लगता है कि इज गिल्टी देन ही विल बी गिवन अ पनिशमेंट, इफ नॉट गिल्टी देन ही विल बी एक्सोडरेटेड. जैसे हियरिंग ऑफ बेल एप्लीकेशन इसका एक एग्जांपल है. सेफ गार्ड ऑन अरेस्ट. सेफ गार्ड ऑन अरेस्ट. अरेस्ट के समय में कुछ सेफ गार्ड्स होते हैं जो कोर्ट ने स्टैब्लिश किया हुआ है कि आपको डिनाई नहीं किया जा सकता. जैसे आपको अपने घर वालों से मिलने से कोई मना नहीं कर सकता, वकील से मिलने से कोई मना नहीं कर सकता, क्योंकि दीज आर सर्टेन सेफगार्ड दैट हैज बीन गिवन टू यू एंड यू कैन नॉट. तो दिस इज सो दैट इंडिविजुअल इंटरेस्ट. सोसाइटी वांटेड कि इस अक्यूज को जेल में डाल दें, बट इंडिविजुअल इंटरेस्ट है कि हमें खाना मिले, हमें पानी मिले, हमें न्याय लेने के लिए एक फोरम मिले. आपको लीगल एड जैसे प्रोविजन दिए जाते हैं. अच्छा, आपको शायद पता होगा कि नहीं, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि जब कभी भी कोई भी केस ट्रायल के लिए जाता है, whenever a matter goes for the trial, ट्रायल समझते हैं आप? अभी हम बताएंगे आपको. ट्रायल बेसिकली जब चार्ज फ्रेम हो जाता है किसी भी केस में तो ट्रायल की प्रोसीडिंग शुरू हो जाती है. ट्रायल बेसिकली एक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, दैट इज कॉल्ड एन ऑडी ऑल्टरम पार्टम. यू शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू हियर बोथ द साइड. और अगर ट्रायल के दौरान, जब ट्रायल शुरू होने से पहले कोर्ट की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वो अभियुक्त से पूछे कि क्या आपके पास एफआईआर की कॉपी है, क्या आपके पास जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए थे उनकी कॉपी है 161 में, क्या 164 में जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए थे उसकी कॉपी है, क्या आपने जो कन्फेशन दिया था उसकी कॉपी है, क्या आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की कॉपी है, क्या आपके पास फॉरेंसिक रिपोर्ट की कॉपी है. ये क्यों पूछता है कोर्ट? क्योंकि कोर्ट चाहता है कि अधिकारों का बैलेंस हो और अक्यूज के पास पूरी प्रॉपर अपॉर्चुनिटी रहे अपने केस में डिफेंस देने के लिए. That's the beauty of a criminal law, right? Section 207 of CRPC, the older CRPC, talks about supplying to the accused an essential copies of the document when case is on police report. पुलिस रिपोर्ट पे अगर कोई केस होता है तो एसेंशियल कॉपीज देना ये कोर्ट का जिम्मेदारी होता है बिफोर इट प्रोसीड विद द ट्रायल. ये जाने की अक्यूज अपने डिफेंस को बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर पा रहा है कि नहीं. और अगर कंप्लेन प्रोसीडिंग का कोई मैटर होता है तो 208 में सप्लाई ऑफ कंप्लेन कॉपी, कंप्लेन की कॉपी, एग्जामिनेशन की कॉपी, वो सारी कॉपीज अक्यूज के पास होने चाहिए. दिस इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ क्रिमिनल लॉ. We have two types of offenses. One is bailable, another is non-bailable. You must be aware when one is a cognizable and another is a non-cognizable. The classification of the offenses, these offenses, CRPC में कौन से offenses का ट्रायल होता है? Primarily IPC का ट्रायल होता है और कुछ ऐसे जो अदर लॉज होते हैं उनका भी ट्रायल होता है अगर वो अप्रोप्रिएट फोरम में फॉल करते हैं तो. मान लीजिए किसी भी मैटर को डील करने के लिए कोई एक्सप्रेस कोर्ट नहीं दिया हुआ है. जैसे आपने सुना होगा कॉलेज में कि कॉग्निजेबल केसेस में एफआईआर लॉज हो गया, लेकिन अगर उस एफआईआर को हमें क्वैश कराना है तो कोई प्रोविजन नहीं दिया हुआ है, कोई अप्रोप्रिएट फोरम नहीं दिया हुआ, तो हम कहाँ जाते हैं? वी गो टू द हाई कोर्ट. वी गो टू द हाई कोर्ट. हाई कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर होता है. सिविल केसेस में जितने भी सिविल कोर्ट है उनके पास इनहेरेंट पावर होता है अंडर सेक्शन 151 ऑफ द सीपीसी, क्योंकि वहां राइट टू लाइफ इन्वॉल्व नहीं होता, वहां लाइफ थ्रेट पे नहीं होता. तो जितने भी सिविल कोर्ट है उनको हमने इनहेरेंट पावर दिया हुआ. लेकिन जब हम बात करते हैं हम क्रिमिनल लॉ की, तो क्रिमिनल लॉ में इनहेरेंट पावर सिर्फ और सिर्फ किसको दिया गया है? हाई कोर्ट को दिया गया है. अच्छा, वर्ड्स पे ध्यान दिएगा, वो इनहेरेंट है. जब कोई चीज इनहेरेंट होता है तो मेरे पास है ही, वो मुझे दिया नहीं गया है. बिकॉज हाई कोर्ट इज नॉट एस्टैब्लिश्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. It is there something which is established before the Parliament of India came into force. So it is inherent. It's because the court having a better wisdom
better knowledge. The inherent power in the criminal cases have been given to the High Court, that whenever required for the end of the justice, the High Court will exercise its inherent power. Clear? Up now we'll proceed the journey from investigation. How does the investigation in a case move down? We have two sorts of cases. दो तरह के केसेस होते हैं. एक होता है कॉग्निजिबल और दूसरा होता है नॉन कॉग्निजिबल. ठीक है, आपके पास एक कंपैरिजन चार्ट है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे. पहले हम ओल्ड सीआरपीसी देखते हैं. कॉग्निजिबल ऑफेंसेस और नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंसेस कैसे फ्लो करते हैं. कॉग्निजिबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस होते हैं जिसमें कि पुलिस के पास पावर होती है बिना अरेस्ट, बिना वारंट के अरेस्ट करना. बिना वारंट के अरेस्ट करना. व्हाट इज वारंट? इट इज अ रिटन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट. इट इज रिटन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट टू apprehend somebody with the proceeding, with the authority of law. मतलब कानून के तहत किसी को गिरफ्तार करना एक रिटन ऑर्डर होता है और उसको हम क्या कहते हैं? वारंट कहते हैं. जनरली ये होता है कि अगर आपके खिलाफ वारंट इशू होता है तो दो तरह के वारंट होते हैं. एक तो बेलेबल वारंट होता है और दूसरा नॉन बेलेबल वारंट, जिसको कि हम एनबी बोलते हैं और एनबीडब्ल्यू बोलते हैं. नॉन बेलेबल वारंट वो वारंट्स होते हैं. हमारे सीआरपीसी में इसका क्लासिफिकेशन नहीं दिया हुआ है. इट इज थ्रू इंटरप्रिटेशन वी हैव केम टू द टू वर्ड्स, एक बेलेबल वारंट और दूसरा नॉन बेलेबल वारंट. नॉन बेलेबल वारंट वो वारंट होते हैं जहां पे ये क्लियरली मेंशन होता है वारंट के पीछे कि जिस व्यक्ति को आप अरेस्ट करने जा रहे हो, अगर वो सिक्योरिटी दे देता है अपने कोर्ट में पहुंचने का, तो उसको देन एंड देयर तुम रिलीज कर दोगे, अरेस्ट करके जेल नहीं भेजोगे. और जो नॉन बेलेबल वारंट होता है उसमें ये स्ट्रिक्टली मेंशन होता है कोई सिक्योरिटी नहीं, कुछ नहीं, पकड़ो और सीधे जेल में डालो, जुडिशियल कस्टडी में. और तारीख पे वो आएगा कोर्ट में और कोर्ट को जवाब देगा कि तुम इतने दिन से कोर्ट क्यों नहीं अटेंड कर रहे थे, या तुमको पकड़ बुलाया जाता तुम क्यों नहीं कोर्ट आ रहे थे, सम्मन तुम्हारे खिलाफ इशू हुआ तब भी तुमने कोर्ट को रिस्पॉन्ड नहीं किया. सो दैट्स अ वारंट. अब अगर संघीय अपराध है, कैसा अपराध है? संघीय अपराध, कॉग्निजिबल ऑफेंस. मैंने आपसे बताया कि क्राइम इज रॉन्ग अगेंस्ट द होल सोसाइटी. क्या है? आप खुद ही से इंटरप्रिटेट करिए. मैंने आपको क्या बताया? क्राइम इज कंसीडर्ड टू बी अ रॉन्ग अगेंस्ट द होल सोसाइटी. अब आपने देखा कि कॉग्निजिबल ऑफेंस में 2C में लिखा है कि कॉग्निजिबल ऑफेंस मींस एन ऑफेंस फॉर विच, एंड कॉग्निजिबल केस means a case for which the police officer can arrest somebody without obtaining the warrant from the magistrate. Look at the interpretation, look at the beauty of the people who have framed the CRPC. क्या कहता है? Cognizable offense means an offense for which cognizable case means a case for which police officer can arrest someone without warrant. Now the question to the class, the people watching the class online as well, what was the intent of the legislature to write in the same section, cognizable offense means an offense for which, and cognizable case means a case for which the police officer can arrest someone without warrant. उन्होंने ये क्यों नहीं लिखा कि cognizable offense means an offense for which police officer can arrest somebody without a warrant. उन्होंने एक ही डेफिनेशन में ये दो बात क्यों लिखी है कि cognizable offense means an offense for which and cognizable case means a case for which the police officer can arrest without warrant. Other question to the class. I just want to make the class interactive. Just give a little दिमाग, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आ जाएगा आंसर. What's your name? अंचिता, अर्चिता, आसना, सूरज. अब देखो, ये ऑफेंस और केस दोनों अलग अलग बात है. अगर ये एक ही बात होता तो लेजिस्लेचर इतना बेवकूफ नहीं है कि दोनों बात को अलग अलग शब्दों में, शब्द पे नहीं खेल रहा है, ये इंटेंट पे खेल रहा है. ऑफेंस क्या होता है? कोई भी एक्ट, कोई भी ओमिशन जो रॉन्ग है और जो किसी भी क्रिमिनल लॉ में पनिशेबल है. ठीक है? मर्डर कमिट हो गया,
ये ऑफेंस हो गया। अब पुलिस आके इन्वेस्टिगेशन नहीं शुरू करेगी जब तक कि उस ऑफेंस पे केस रजिस्टर्ड ना हो। द moment for that offense a criminal proceeding begins that take a shape of a case. It can be either in the form of the FIR or it can be either in the form of the complaint. The moment for that offense the criminal proceeding begins, it takes the shape of the case and then the role of the police officer starts. मर्डर कमिट हुआ, कोई भी जाके इन्फॉर्म नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, पुलिस ऑफिसर को कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, why he will start investigation? He will only start investigation only when the case for that particular offense is registered. The case can be either the FIR or the case can either be the complaint. अब suppose that one cognizable offense has been committed. Suppose that the murder has been committed. Case कैसा होगा? Cognizable case होगा. अब ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए एक आदमी ने पहले क्या किया, एक आदमी के घर में घुसा, क्या किया? ट्रेसपास किया। ट्रेसपास क्या है? नॉन कॉग्निजेबल है। दूसरा यहाँ पे असॉल्ट किया, नॉर्मल से एक थप्पड़ मारा, ठीक है, ये क्या है? ये भी नॉन कॉग्निजेबल है। और फाइनली क्या कर दिया? मर्डर कर दिया। ये क्या है? ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अब केस क्या होगा? केस क्या होगा? कॉग्निजेबल केस होगा। इस पूरे तीनों ऑफेंसेस के लिए क्या रजिस्टर होगा? एफआईआर। क्योंकि कॉग्निजेबल केसेस में क्या होता है? एफआईआर रजिस्टर होता है। ये केस कैसा है? कॉग्निजेबल केस है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति एक ही ट्रांजैक्शन में चाहे जितने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस करे, लेकिन अगर उसने एक भी कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है तो केस क्या होगा? कॉग्निजेबल केस होगा। एंड द लॉ फॉर दिस इज गिवन अंडर सेक्शन 155 clause 4 in the old CRPC. Got it? That if in the same transaction, you can write this line. You can write this line. समझ में आ रहा है? अर्चिता, आसना, are you getting it? Sure? आ रहा समझ में? लिखिए। As per section 155 clause 4, as per section 155 clause 4, if in one case, as per section 155 clause 4, if in one case several offenses are involved, if in one case several offenses are involved, if in one case several offenses are involved, comma, the case will be a cognizable case. If in one case several offenses are involved, the case will be cognizable case. If at least one of them is cognizable offense. If at least one of them is a cognizable offense. I'm repeating, if in one case several offenses are involved, comma, the case will be a cognizable case if at least one of them is a cognizable offense, full stop. On the other hand, if all of them are non-cognizable offenses, on the other hand, if all of them are non-cognizable offenses, then the case will be called, on the other hand, if all of them are non-cognizable offenses, then the case will be called non-cognizable case. The law is given under section 155 clause 4. ठीक है? Clear? सूरज किधर से निकलेगा? पूरब से ना? ठीक है। सो वी हैव अंडरस्टूड दैट कि अगर एक ट्रांजैक्शन में एक कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया तो केस कैसा होगा?
कॉग्निजिबल होगा, और सारे अगर नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस कमिट हुए हैं तो क्या होगा, केस जो है नॉन कॉग्निजिबल केस रहेगा। ऑफेंस और केस में क्या फर्क होता है, किसी भी क्रिमिनल लॉ में अगर कोई कृत्य जो है पनिशेबल है, कोई रॉन्ग जो एक्ट है वो रॉन्ग है और वो पनिशेबल है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑफेंस बोलते हैं। जैसे ही उस ऑफेंस का हम क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द एफआईआर और इन द फॉर्म ऑफ द कंप्लेंट, दैट टेक्स द शेप ऑफ अ केस। क्लियर? कॉग्निजिबल अपराधों में हमेशा एफआईआर लॉज होता है। क्या लॉज होता है? एफआईआर लॉज होता है। और नॉन कॉग्निजिबल केसेस में क्या लॉज होता है? एनसीआर लॉज होता है। ध्यान दीजिएगा, अब एक्चुअली मैं पढ़ाना शुरू कर रही हूँ। अब कॉग्निजिबल एंड नॉन कॉग्निजिबल, हमारी पुरानी सीआरपीसी में कॉग्निजिबल ऑफेंसेस में दिया हुआ है एफआईआर। एफआईआर का कहीं जिक्र नहीं है। एफआईआर इज कॉल्ड फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट क्या क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछे क्या होता है, एक लाइन में बताइए। ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है संघीय अपराध का। दिस इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कॉग्निजिबल ऑफेंस एंड हुएवर इट हैज, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन तुम सड़क पे देख रही हो कि एक लाश पड़ी हुई है और तुम सीधे जाती हो अलीगंज थाने पे, क्योंकि तुमने पहली बार सूचना किसको दी है? पुलिस ऑफिसर को दी है। एंड पुलिस के पास पहली बार सूचना कैसे मिली है? तुम्हारे थ्रू। सो दिस इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन विथ रिस्पेक्ट टू कॉग्निजिबल ऑफेंस। और आपने जाके सिर्फ सूचना दे दी कि मैंने देखा है कि ए ने बी को गोली मारा और बी की लाश पड़ी हुई है। आपने देखा है, आपने खुद अपनी इंद्रियों से देखा है, आपको आसना ने आके नहीं बताया है। Because in India we believe that hearsay evidences are excluded. Why? अगर हम बता, तुम जाओगी कोर्ट के सामने, जब तुम प्रस्तुत होगी तो तुम कहोगी सर मुझे आसना ने बताया था कि ऐसे ऐसे गोली चला था, तो तुम्हारा क्रॉस एग्जामिनेशन बेटर तरीके से नहीं हो पाएगा। इसीलिए कोर्ट ने पहले ही कहा है कि देयर आर सर्टेन वेज जहां पे हम हियर से सुनी सुनाई बातों के साक्ष्यों पे ध्यान नहीं देते हैं। इसीलिए जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों से देखा है, अपनी आंखों से देखा है घटना को होते हुए, जिसके पास पहली इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग द कॉग्निजिबल ऑफेंस, कैन गो एंड लॉज द एफआईआर. So in cognizable cases, FIR is lodged. In non-cognizable cases, what is NCR is filed and which is called non-cognizable report. अब दोनों में बहुत फर्क है। पहले हम आपको बताते हैं नॉन कॉग्निजिबल रिपोर्ट क्या होता है। बेसिकली नॉन कॉग्निजिबल रिपोर्ट नॉन कॉग्निजिबल केसेस में फाइल होता है, जिसकी सबसे पहली प्राथमिकता यह है कि अगर कोई नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस है तो उसमें पुलिस के पास पावर अरेस्ट करने की नहीं होती, एज पर डेफिनेशन. As per definition given under section 2L, that in non-cognizable offense means an offense for which, and non-cognizable case means a case for which the police officer cannot arrest without obtaining the warrant from the magistrate. So it is what does it mean? That if the police wants to arrest somebody in the non-cognizable cases, the police needs to seek a permission from the magistrate. Now my question is that now what happens then in non-cognizable cases? Why it is important? Why it is mentioned? अब you should know that कि क्या होता है नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंसेस. सी, मैंने आपको बताया कि क्राइम इज कंसीडर्ड टू बी रॉन्ग अगेंस्ट द होल सोसाइटी. अब जब पुलिस को इतनी पावर दी गई है कि बिना कोर्ट के इंटरवेंशन के आप किसी भी व्यक्ति की पर्सनल आजादी को क्या कर सकते हैं, कर्टेल कर सकते हैं, इसका मतलब वो अपराध संज्ञेय होगा, वो अपराध हीनियस होगा, वो अपराध ग्रेव होगा, है ना. और नॉन विदाउट गोइंग टू टेक्निकलिटीज, अप्लाइंग योर विजडम, non-cognizable offense less serious offenses which has lesser societal impact, isn't it? Cognizable offense has more societal impact and non-cognizable has lesser societal impact. That's the reason that the police has not given a power to arrest somebody without obtaining the warrant. So section 155 deals with the recording of NCR as well as investigation in the cases ऑफ एनसीआर के केसेस. अब ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ रिकॉर्डिंग कहता है कि आप अगर नॉन कॉग्निजिबल अपराध हुआ है तो आप थाने में जाइए, थाने में जाके आप जो भी इंफॉर्मेंट होगा जाके बताएगा कि नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस मेरे साथ हुआ है या मेरा कुछ भी हुआ है. एसएचओ साहब जो आई थाने में दो तरह के आईओ होते हैं, एक तो कॉग्निजिबल ऑफेंसेस के लिए, दूसरे नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंसेस के लिए. आईओ आपकी सूचना को रजिस्टर करेगा, आपको एक कॉपी दे देगा और आपको रेफर कर देगा मजिस्ट्रेट के पास. अब क्या है, क्या अरेस्ट कर सकता आईओ? नहीं कर सकता, क्योंकि सेक्शन 2L में साफ साफ लिखा हुआ है कि बिना मजिस्ट्रेट के परमिशन के अरेस्ट नहीं कर सकता. क्या आईओ इन्वेस्टिगेट कर सकता है नॉन कॉग्निजिबल केस में?
नहीं कर सकता। आईओ को अगर इन्वेस्टिगेट करना है तो उसको मजिस्ट्रेट साहब से परमिशन लेनी होगी। कौन से मजिस्ट्रेट से? दैट्स गिवन अंडर सेक्शन 155 कि फ्रॉम विच मैजिस्ट्रेट द आईओ विल टेक द परमिशन। अब ध्यान दीजिएगा, ये नॉन कॉग्निजेबल जो सूचना है, ये मान लीजिए इस पुलिस के टेरिटोरियल जुरिडिक्शन में कमिट हुआ है, तो इसका जो एरिया मजिस्ट्रेट होगा ये वहां पे जाएगा उस मजिस्ट्रेट के पास जिसके पास पावर हो उस अपराध को ट्राई करने के लिए। और कैसे मालूम चलेगा किसके पास पावर है कि नहीं? आप शेड्यूल 1 में जाओगे, शेड्यूल 1 में टोटल कितने कॉलम है? 6 कॉलम है। पहला कॉलम सेक्शन बताता है आईपीसी का, जहां जिसको अपराध माना गया है। दूसरा उसका डेफिनेशन, तीसरा उसका पनिशमेंट, फिर बेलेबल, नॉन बेलेबल, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, बाय व्हाट कोर्ट इट इज ट्रायबल, किस कोर्ट के द्वारा इस अपराध का ट्रायल होगा। ये कहां दिया हुआ है? शेड्यूल 1 में दिया हुआ है। अब ये एरिया मजिस्ट्रेट कौन होगा? जो उस अपराध को ट्राई कर सकता है, उससे परमिशन लेगा इन्वेस्टिगेट करने का, या जो उस अपराध को ट्राई तो नहीं कर सकता लेकिन सेशन कोर्ट के सामने कमिट कर सकता है। क्या कर सकता है? कोर्ट ऑफ सेशन के सामने कमिट कर सकता है। आपको बताती हूँ, ये एक ओवरव्यू क्लास है, जब हम डिटेल में पढ़ते हैं तो मैं कमिटल ही 10 दिन में पढ़ाती हूँ सेशन कोर्ट का। 2.5 महीने चलती है आपकी सीआरपीसी की क्लास, 2-2.5 महीने। कमिटल सेशन कोर्ट अपने ओरिजिनल जुरिडिक्शन में, जुरिडिक्शन समझते हैं आप? जैसे आपको मालूम है कितने तरह के क्रिमिनल कोर्ट्स होते हैं? सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, कोई भी पनिशमेंट दे सकता है, कितना भी फाइन दे सकता है। आपको पता है 5 तरीके के पनिशमेंट्स होते हैं। पहला डेथ सेंटेंस, ओल्ड आईपीसी के तहत, अभी तो बहुत सारे नए जुड़ गए हैं। दूसरा लाइफ इंप्रिजमेंट, पनिशमेंट तो नहीं जुड़े लेकिन कैटेगरीज ऑफ ऑफेंसेस जुड़ गए हैं। लाइफ, डेथ सेंटेंस, लाइफ इंप्रिजमेंट, इंप्रिजमेंट नहीं, इंप्रिजमेंट रिगरस और सिंपल हो जाता है, फाइन एंड फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। तो सुप्रीम कोर्ट कैन गिव यू एनी पनिशमेंट, कैन इम्पोज एनी अमाउंट ऑफ फाइन। हाई कोर्ट जो है वो भी कोई पनिशमेंट दे सकता है, कितना भी अमाउंट का फाइन दे सकता है। उसके नीचे आता है सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट के 2 क्लासिफिकेशन होते हैं। सेशन कोर्ट के 2 क्लासिफिकेशन होते हैं। पहला होता है एडिशनल सेशन कोर्ट, ये भी कोई भी पनिशमेंट दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एनी पनिशमेंट। लेकिन अगर इन्होंने डेथ सेंटेंस दिया है तो वो डेथ सेंटेंस तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक कि हाई कोर्ट इसको कंफर्म नहीं करेगा। गॉट इट? एनी डाउट? नो। ये एडिशनल जहां भी लिखा होगा ना, मेन वाला ही पावर होता है इसके पास। सेशन कोर्ट और एडिशनल सेशन कोर्ट, जब आप चार्ज फ्रेमिंग करोगे, जजमेंट राइटिंग इन द कोर्ट ऑफ एडिशनल सेशन जज, राइट? सो एडिशनल सेशन जज के पास सेम पावर होता है जो सेशन जज के पास होता है। अब आता है इसके नीचे सीजीएम, सॉरी असिस्टेंट। ये असिस्टेंट क्या करता है? 10 इयर्स और कितना भी अमाउंट का फाइन। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, कोई भी पनिशमेंट, कितना भी अमाउंट का फाइन। उसके नीचे बोलिए हाई कोर्ट, कितना भी पनिशमेंट, कितना भी फाइन। उसके नीचे सेशन कोर्ट एंड एडिशनल सेशन कोर्ट, कितना भी पनिशमेंट और कोई भी पनिशमेंट और कितना भी अमाउंट का फाइन। लेकिन अगर सेशन कोर्ट या एडिशनल सेशन कोर्ट ने डेथ सेंटेंस दिया है, सो दैट हैज टू बी कंफर्म बाय द हाई कोर्ट। उसके नीचे आता है आपका असिस्टेंट। असिस्टेंट 10 इयर्स और कितना भी अमाउंट का फाइन। अब आप आते हैं सीजीएम। व्हाट इज सीजीएम? चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। और अब ये चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट 7 इयर्स तक का पनिशमेंट दे सकते हैं और कितना भी अमाउंट का फाइन दे सकते हैं। और उसके बाद आता है जेएम फर्स्ट, 3 इयर्स एंड 10,000, अभी बढ़ा दिया है, देखना है कितना बढ़ाया है। और उसके बाद जेएम सेकेंड आपका 1 ईयर और 5,000। क्लासिफिकेशन ये है आपका। अब अगर मान लीजिए आपको मैं बताई थी कि भाई अगर मान लीजिए आपको पनिशमेंट चाहिए तो क्लासिफिकेशन कैसे होगा? आप शेड्यूल 1 में जाओगे और वहां से देखोगे कि इस अपराध का ट्रायल कौन कर सकता है। अब मान लीजिए कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है। ऑफेंस कमिट होने की प्रोसीडिंग क्या है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा, आप एनसीआर डायरी में रजिस्टर करोगे, उसकी जो डुप्लीकेट कॉपी है वो इन्फॉर्मेंट को आप दे दोगे और इन्फॉर्मेंट को बोल दोगे कि जब आपको कोर्ट में बुलाया जाएगा सम्मन के थ्रू तब आप आइएगा। ठीक। अब अगर पुलिस ऑफिसर को, आईओ को इन्वेस्टिगेशन करना है तो किससे परमिशन लेगा? वो मैजिस्ट्रेट जो उस अपराध को ट्राई कर सकता है। तो ट्राई कौन करेगा? तो हम शेड्यूल 1 से देखेंगे कि कौन सा मैजिस्ट्रेट इसको ट्राई कर सकता है। और अगर वो मैजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है तो वो भी मैजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकता है इन्वेस्टिगेशन का, जो उस अपराध को सेशन कोर्ट के पास कमिट कर दे। अब बात आती है लॉ की।
सेशन कोर्ट अपने ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेता है। जितने भी केसेस सेशन कोर्ट के पास पहुंचते हैं, जनरल रूल यही है कि जितने भी अपराध सेशन कोर्ट के पास पहुंचते हैं वो ट्रांसफर प्रोसीडिंग से पहुंचते हैं। अब क्या होता है इसमें, बट इसका अपवाद है, इसका एक एक्सेप्शन है कि अगर किसी भी प्रेसिडेंट को, किसी पब्लिक सर्वेंट को या इन ऐसे डिग्निटरीज को, गवर्नर को आप डिफेम करते हैं, क्या करते हैं, डिफेम करते हैं, तो ऐसे केसेस में सेशन कोर्ट अपने ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में क्या करता है, संज्ञान लेता है। दैट्स द लॉ, 199 में दिया हुआ है। अब बाकी जितने भी केसेस सेशन कोर्ट के पास जाते हैं ट्रायल करने के लिए, वो कैसे जाते हैं, कमिटल प्रोसीडिंग। कैसे, कमिटल प्रोसीडिंग। सेशन कोर्ट किन अपराधों का ट्रायल करता है, वो अपराध जो एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन होगा। कैसा, एक्सक्लूसिवली, मतलब उसका ट्रायल कोई और कर नहीं सकता। वो कहां दिया हुआ है, वो शेड्यूल 1 में दिया हुआ है। मर्डर है, एग्जाम्पल, मर्डर। मर्डर क्या है, मर्डर में पनिशमेंट क्या है, डेथ सेंटेंस। कौन सा कोर्ट दे पाएगा, सेशन कोर्ट। हाई कोर्ट तो ऊपर हायरार्की में है ना, निचले स्तर पे कौन है, सेशन कोर्ट। तो ट्रायल कौन करेगा, सेशन कोर्ट। तो इसका मतलब मर्डर का जो एक्सक्लूसिव ट्रायल है वो कौन करेगा, सेशन कोर्ट करेगा। तो सेशन कोर्ट दो तरह के अपराधों का ट्रायल करता है। पहला, जो एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन हो, वो कैसे मालूम चलेगा, शेड्यूल 1 से। दूसरा, कि मान लीजिए किसी अपराध में सीजीएम साहब ने ट्रायल शुरू किया और ट्रायल के दौरान कुछ ऐसे साक्ष्य लग गए जिसमें लग रहा है कि लाइफ इंप्रिजमेंट देना चाहिए एविडेंसेस के बेसिस पे, और सीजीएम तो लाइफ इंप्रिजमेंट दे नहीं सकता। Trial has started, evidences have been recorded, and the case has came before the CGM, and the case CGM has thought that in this case the punishment ought to be given. Now he can't give the punishment, so what he will do? He will transfer the case to the session court for giving the enhancement of punishment. So there are two ways is that the case committal proceeding begins with before the session court. One, the case is exclusively triable by the court of session, or the case is ought to be tried by the court of session. तो आईओ साहब जो है जाएंगे मैजिस्ट्रेट के पास, किस केस में, नॉन कॉग्निजेबल केस में, परमिशन लेंगे किस चीज का, इन्वेस्टिगेशन का, और उसके बाद नॉन कॉग्निजेबल केस में इन्वेस्टिगेशन करेंगे। क्लियर। इन्वेस्टिगेशन करते समय नॉन कॉग्निजेबल केस में उनको लगता है कि आशना को अरेस्ट करना है। अभी उन्होंने किस चीज की परमिशन ली है, इन्वेस्टिगेशन की। तो क्या उसी इन्वेस्टिगेशन के परमिशन से आसना को अरेस्ट कर सकते हैं, नहीं। उनको लगा कि अरेस्ट करना है, देन फिर वो मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे और किस लिए, परमिशन लेंगे अरेस्ट करने के लिए। और एक बार अगर पुलिस को नॉन कॉग्निजेबल केस में परमिशन मिल गया इन्वेस्टिगेशन करने का, तो उसके पास वो सारे पावर होते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के जो उसको कॉग्निजेबल केसेस में होते हैं। क्या होता है, किसी भी जगह का सर्च करना, सीजर करना, किसी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना, कुछ भी करता है, जो भी वो किसी कॉग्निजेबल केस में करता है वही वो नॉन कॉग्निजेबल केस में करेगा, एक्सेप्ट अरेस्ट। अरेस्ट अगर किसी को करना है तो उसको हमेशा परमिशन लेनी पड़ेगी मजिस्ट्रेट से। और जब कभी भी पुलिस, चाहे वो कॉग्निजेबल केस हो चाहे वो नॉन कॉग्निजेबल केस हो, अगर वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो वो क्या बनाएगा, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाएगा, और जिसको हम कहते हैं पुलिस रिपोर्ट, चालान, चार्जशीट। और फिर वो चार्जशीट प्रिपेयर करके किसको देगा, मैजिस्ट्रेट को देगा। क्यों देगा, संज्ञान लेने के लिए, कॉग्निजेंस लेने के लिए। और मैजिस्ट्रेट जो है अगर वो चार्जशीट को पढ़ता है और संज्ञान लेता है तो माना जाएगा मजिस्ट्रेट हैज टेकन अ कॉग्निजेंस ऑन पुलिस रिपोर्ट, बिकॉज वेदर इट इज अ कॉग्निजेबल केस का पुलिस रिपोर्ट और नॉन कॉग्निजेबल केस का पुलिस रिपोर्ट, इट विल बी अ कॉग्निजेंस अंडर सेक्शन 191 क्लॉज बी। क्लियर, यू विल ड्रॉ वन डायग्राम। गॉट इट, समझ में आ रहा है सूरज। नॉन कॉग्निजेबल केसेस का आप लिख लीजिए सेक्शन 155। पहला इज रिकॉर्डिंग ऑफ एनसीआर, रिकॉर्डिंग ऑफ नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, ठीक है, रिकॉर्डिंग हो गया। देन फिर उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है,
अगर पुलिस को लगता है कि वो इन्वेस्टिगेट करेगा, देन पुलिस विल सीक परमिशन. क्या करेगा? पुलिस ऑफिसर विल सीक परमिशन. ही विल सीक परमिशन for investigation. Police officer will seek permission for investigation. तीसरा, अब now magistrate grants permission. If magistrate grants permission, अगर magistrate ने permission grant कर दिया है, then in that cases police officer will have all power of doing investigation. Got it, Archita? People watching class online, I'm unable to see Ravi Kumar and others. If you have any doubt, hai bache? If you have any doubt, you can ask question. See, recording of NCR, that is non-cognizable report. Who will record? The IO will record. This is an investigating officer. थाने में दो तरह के आईओ होते हैं, एक तो कॉग्निजेबल केसेस वाले और एक नॉन कॉग्निजेबल केसेस वाले. कितने तरह की डायरी होती है? दो तरह की. एक होती है एफआईआर डायरी जो ड्यूली पेजिनेटेड होती है, पेज नंबर लिखे होते हैं, और दूसरी होती है एनसीआर डायरी. तो एनसीआर डायरी में नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट दायर होता है. फिर उसके बाद जो आईओ होता है वो जाके परमिशन लेता है इन्वेस्टिगेशन करने का. फिर मैजिस्ट्रेट उसको परमिशन ग्रांट करता है, और अगर एक बार पुलिस ऑफिसर को परमिशन ग्रांट हो गया तो पुलिस ऑफिसर के पास वो सारे पावर होते हैं इन्वेस्टिगेशन के, जैसा कि पुलिस ऑफिसर विल हैव ऑल पावर ऑफ डूइंग इन्वेस्टिगेशन as in cognizable case. Got it? And now अगर इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर पुलिस को ये लगता है, ये किससे लेगा परमिशन? Police officer will seek permission for doing investigation from the magistrate who is competent to try or commit the case for the trial. Commit the case for trial. Committal किसके सामने होता है? कमिटल जो वर्ड इस्तेमाल किया गया किसके लिए होता है? सेशन कोर्ट के सामने. क्यों होता है कमिटल? दो तरह से होता है कमिटल. पहला, जब अपराध एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन होता है, इसका मतलब कोई और उसका ट्रायल नहीं कर सकता. तो सीधे जिस मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लिया और लगा करे तो मर्डर केस है, संज्ञान तो कोई भी मजिस्ट्रेट ले सकता है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट. पता होगा आपको, और या नहीं पता तो मैं बताती हूँ आपको कि किसी भी अपराध का संज्ञान कोई भी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ले सकता है. और जो सीजीएम होता है वो भी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होता है. वो क्या होता है? प्रमोशन के थ्रू चीफ बन जाता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, लेकिन वो होता फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट ही है. किसी भी अपराध का आप संज्ञान ले लोगे, जज बन जाओगे. लेकिन अपराध का संज्ञान लेते ही लगा, संज्ञान का मतलब आपने पुलिस रिपोर्ट देखा और भैया ये तो मर्डर केस है, आई कैन नॉट ट्राई, इवन इफ आई एम सीजीएम आई कैन नॉट ट्राई, एंड द केस हैज टू बी ट्रांसफर टू द सेशन कोर्ट. तो क्या होगा कि मैंने संज्ञान तो ले लिया, मैंने अपना इंक्वायरी तो मैंने स्टार्ट कर दिया, लेकिन मुझे लगा कि ये केस जो है एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है, ये ऐसा शेड्यूल 1 में लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूंगी? ट्रांसफर कर दूंगी. और जैसे ही मैं ट्रांसफर करूंगी, अब क्योंकि सेशन कोर्ट के पास केस जा रहा है, तो सेशन कोर्ट भी बहुत कॉन्शियस रहता है ना कि भाई मेरे पास केस आ रहा है, इसका मतलब पनिशमेंट भी हायर होगा. तो सेशन कोर्ट ये अश्योर करता है कमिटल प्रोसीडिंग आगे बढ़ाने से कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नोटिफाई किया जाता है, सरकारी वकील को, कि भैया अक्यूज के पास एफआईआर की कॉपी है कि नहीं, अक्यूज के पास स्टेटमेंट की कॉपी है कि नहीं, इन्वेस्टिगेशन में 164 की कॉपी है कि नहीं, क्योंकि फिर उस पर हियरिंग होगा और फिर सेशन कोर्ट के सामने प्रोसीडिंग आगे बढ़ती है. ये नहीं कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपना दिमाग लगा के ट्रांसफर कर दिया और सेशन कोर्ट उसी के धुन में नाचने लग गया, ऐसा नहीं होगा. राइट? द कोर्ट विल अप्लाई इट्स ऑल्सो जुडिशियल माइंड. तो अब कमिट द केस फॉर द ट्रायल का मतलब फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट. फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट किसी भी अपराध का संज्ञान लेते हुए उसको लगता है कि भैया मैं तो नहीं ट्राई कर सकता, दिस केस इज एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन. दो कानून है, दो सेक्शन है हमारे ओल्डर सीआरपीसी में. पहला 209 जो कमिटल प्रोसीडिंग की बात करता है, और 323. अब मैं ट्रायल कर रही थी, मैं सीजीएम थी, मुझे लगा कि इस केस में तो फांसी मिलना चाहिए, तो मैं क्या करूंगी? मैं केस को ट्रांसफर कर दूंगी, किसके सामने? कमिट कर दूंगी. लेकिन यहाँ पे ये मैटर नहीं है, यहाँ पे पुलिस को सिंपली परमिशन लेना इन्वेस्टिगेशन करने का. तो अब कौन सा पुलिस, कहाँ पे एनसीआर लॉन्च होगा?
जिसके जुरिस्डिक्शन में अपराध कमिट होगा उसी के जुरिस्डिक्शन में क्या होगा, एनसीआर लॉज होगा। क्रिमिनल केसेस में, जो कॉग्निजेबल केसेस में एक कंसेप्ट था, आपने वो मूवी देखी है पिंक? पिंक मूवी देखी है? वहां पे देखा था ना कि जुरिस्डिक्शन में बार बार पुलिस कहता कि मैं नहीं लॉन्च करूंगा एफआईआर, मेरे जुरिस्डिक्शन का मामला नहीं है, मैं नहीं लॉन्च करूंगा, मेरे जुरिस्डिक्शन का मामला नहीं है। अभी जेएस वर्मा कमेटी ने रिकमेंड किया था निर्भया केस में कि हमारे कानून में एक अमेंडमेंट होना चाहिए जिसमें कि एक्सप्रेसली चाहे किसी के भी जुरिस्डिक्शन में अपराध कमिट किया गया हो लेकिन एफआईआर लॉन्च हो जाना चाहिए। एफआईआर लॉन्च होने के बाद एक जीरो डायरी आपके यहाँ होती है, जीरो एफआईआर के तौर पे, और उसके बाद कंसर्न थाने को आप ट्रांसफर कर दीजिए रादर देन कि आप इसको ना करेंगे। ये हम लोगों ने इंटरप्रिटेशन के थ्रू इस कंसेप्ट को लेके हम पहले आए थे पुरानी सीआरपीसी में। जो ये नया बीएनएसएस आया है इसमें एक्सप्रेसली सेक्शन 173 में मेंशन किया हो, मैंने आपको कंपैरिजन दिया है हार्ड कॉपी में, कि अब कोई भी पुलिस स्टेशन, कोई भी थाना इस चीज से मना नहीं कर सकता कि ये मेरे टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में अपराध कमिट नहीं हुआ, मैं नहीं लॉन्च करूंगा। रादर थाने में एनसीआर एफआईआर लॉन्च होगा, एक डायरी होगी और उस एफआईआर को लॉन्च, आपकी रिकॉर्डिंग होगी स्टेटमेंट्स को, और कंसर्न थाना को उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। राइट तो यही है कि भाई आपने एनसीआर लॉन्च किया और फिर आपने इन्वेस्टिगेशन का परमिशन ले लिया, मजिस्ट्रेट ने आपको परमिशन ग्रांट कर दिया, एंड द पुलिस के पास वो सारे पावर हैं जो कॉग्निजेबल केस में होते हैं। अब क्या पुलिस अरेस्ट कर सकती है? नहीं। अरेस्ट करने के लिए क्या करना होगा? फॉर अरेस्ट फ्रेश परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, और एक बार इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट जब होता है तो चाहे वो कॉग्निजेबल केस हो चाहे वो नॉन कॉग्निजेबल केस हो, पुलिस क्या बनाएगी? पुलिस रिपोर्ट, जो कि हम कहते हैं चालान, चार्जशीट या फिर पुलिस रिपोर्ट। तीन नाम, पुलिस रिपोर्ट, चालान, चार्जशीट। अब इस पुलिस रिपोर्ट, चालान, चार्जशीट में दो बातें हो सकती है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया और कहा कि हमें लगता है इन्वेस्टिगेशन से कि अभियुक्त ने अपराध किया है, या अभियुक्त के साथ और भी दो तीन लोगों ने मिलकर ये अपराध किया है। या पुलिस के पास दूसरा ऑप्शन होता है क्लोजर रिपोर्ट फाइल करने का। क्या करने का? क्लोजर रिपोर्ट, कि हम केस को क्लोज कर रहे हैं, हमें कोई भी एलिमेंट, हमने इन्वेस्टिगेशन किया, वी डिड नॉट फाउंड एनी एलिमेंट कि अक्यूज ने अपराध किया है। तो अब जो अगर पुलिस रिपोर्ट में कुछ एलिमेंट्स होगा या नहीं भी क्लोजर रिपोर्ट होगा, ये दोनों ही किसके पास जाएगा? मैजिस्ट्रेट के पास जाएगा। और मैजिस्ट्रेट के पास जैसे ही ये मैटर पहुंचता है, ये स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन यहीं से खत्म हो जाता है। जैसे ही पुलिस रिपोर्ट कहां पहुंचता है? मैजिस्ट्रेट के पास, द स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड्स एंड द स्टेज ऑफ इंक्वायरी स्टार्ट्स। द स्टेज ऑफ इंक्वायरी स्टार्ट्स। ठीक है, स्टार बना के आप तीन बातें लिखिए, फिर आगे की बात बताऊंगी। पहली बात, पहला, नो अरेस्ट विदाउट वारंट इन नॉन कॉग्निजेबल केसेस। नो अरेस्ट विदाउट वारंट, शॉर्ट में लिखवा रही। ठीक है, दूसरा, नो एफआईआर, ओनली एनसीआर इज लॉन्च। नो एफआईआर, ओनली एनसीआर इज लॉन्च। नो एफआईआर, ओनली एनसीआर इज लॉन्च। पुलिस कैन नॉट इनिशिएट इन्वेस्टिगेशन। पुलिस कैन नॉट initiate investigation unless magistrate's order is given. Police cannot initiate investigation unless magistrate's order is given. Unless magistrate order is given. Got it? अब एक सवाल आपसे, मान लीजिए किसी भी नॉन कॉग्निजेबल केस में पुलिस ने बिना मजिस्ट्रेट के परमिशन के इन्वेस्टिगेट कर दिया तो क्या होगा? द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन टू यू, राइट डाउन, what if the police officer, question है ये, what if the police officer conduct the investigation without magistrate order?
अगर आपसे कभी इंटरव्यू में पूछा जाए कि नॉन कॉग्निजेबल केस में अगर पुलिस ने बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के इन्वेस्टिगेशन कर दिया तो क्या होगा, एक लाइन में बताइए। The entire investigation will be considered to be illegal. लिखिए आंसर। If without order of magistrate, if without order of magistrate, investigation is done by the police officer, if without the order of magistrate, investigation is done by the police officer, the entire investigation is considered to be illegal. The entire investigation is considered to be illegal. If without order of magistrate, comma, investigation is done by the police officer, the entire investigation is considered to be illegal. अब क्या होगा? अब जैसे ही अक्यूज को ये मालूम चलता है, अक्यूज के वकील को, कि यहाँ तो बिना मजिस्ट्रेट के परमिशन के इन्वेस्टिगेशन हुआ है, तो अब वो क्या करेगा? वो कहाँ जाएगा? कौन से मजिस्ट्रेट के पास? अब यही मैं आपको बताना चाह रही थी। मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि हमारे सीआरपीसी में कुछ तो एक्सप्रेस प्रोविजन दिए हुए हैं कि इनका ट्रायल ये करेंगे, इनका कॉग्निजेंस ये लेंगे। अब ये कहीं नहीं दिया हुआ है कि मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन तो ऑर्डर कर सकता है। क्या जिस मजिस्ट्रेट ने इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया है वो उस इन्वेस्टिगेशन को क्वैश कर सकता है? द आंसर इज नो। क्वेश्चन के लिए कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं दिया हुआ है, और जब कभी भी हमारे सीआरपीसी में कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं दिया होता है तो ऐसी परिस्थिति में हम कहाँ जाते हैं? हम हाई कोर्ट जाते हैं और वहां जाके एप्लीकेशन लगाते हैं अंडर सेक्शन 482 में, जिसको कि हम इनहेरेंट पावर ऑफ द हाई कोर्ट कहते हैं। आपको इनहेरेंट पावर समझना पड़ेगा कि देखिए, आपने एक केस है, एक केस मैं आपको बताती हूँ जो बहुत फेमस केस है, सकीरी बासु वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। आपने कॉलेज में पढ़ा होगा। इस केस में क्या हुआ था कि एक व्यक्ति का एफआईआर रजिस्टर नहीं हो रहा था। नॉर्मल लेमैन की तरह समझते हैं। आपके पास आपका एफआईआर रजिस्टर नहीं होगा तो आपके पास क्या रेमेडी है? आप कंप्लेन फाइल कर सकते हो, आप एसपी को रिटर्न अपनी पूरी कंप्लेन भेज सकते हो। ठीक है, वो एसपी ऑर्डर करेगा फिर आपका एफआईआर लॉन्च करने के लिए। आप कंप्लेन फाइल कर सकते हो कोर्ट के सामने। अब आपने क्या किया? आपने कोर्ट के सामने कंप्लेन फाइल किया। कोर्ट को उस कंप्लेन को देख के लगा कि इस केस में इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, तो कोर्ट ने क्या ऑर्डर कर दिया? इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दिया कि नहीं, ये कंप्लेन पे कॉग्निजेंस नहीं लिया कोर्ट ने। कॉग्निजेंस का मतलब कि कोर्ट ने उस कंप्लेन को पढ़ा और कंप्लेन को पढ़ के लगा उसको कि इस केस में इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, समनिंग नहीं होनी चाहिए। बेसिकली कंप्लेन केसेस में क्या होता है? आगे जाके समनिंग होती है, फिर समन में बुलाया जाता है, फिर वो अलग प्रोसीडिंग होती है, लेकिन कोर्ट को ये लगता है कि इस केस में प्रॉपर पुलिस इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। तो कोर्ट ने इसका मतलब उस कंप्लेन पे कॉग्निजेंस नहीं लिया है। और कंप्लेन क्या होता है? कंप्लेन हमेशा राइटिंग में होता है और वो किसी भी अपराध के लिए कंप्लेन किया जा सकता है, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल दोनों अपराधों के लिए। आप कंप्लेन बिफोर द मैजिस्ट्रेट यू कैन डू फॉर द कॉग्निजेबल एज वेल एज अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। द ओनली थिंग इज दैट यू वांटेड द मैजिस्ट्रेट टू टेक एक्शन ऑन द कंप्लेन. If you are not asking the magistrate to take action against a known or unknown person, it will not be a complaint. It is just to informing the magistrate. आप समझ रहे हैं? आपने सिर्फ सूचना दी है मजिस्ट्रेट साहब को कि फला फला घटना घट गई है। आप ये नहीं कह रहे कि मजिस्ट्रेट साहब इस पे आप क्या करिए? प्रोसीडिंग इनिशिएट करिए। देन इट इज नॉट अ complaint. The essential ingredient of complaint is that complaint is an allegation made against some known or unknown person. It has to be, if it is given orally, it has to be reduced into the writing, and you wanted the magistrate to take the action on the complaint. If you are not asking the magistrate to take the action, means that you are just informing the magistrate. Information. If you can recall, section 190 of the CRPC takes the cognizance on three things. पहला कंप्लेन पे, दूसरा पुलिस रिपोर्ट पे, और तीसरा इंफॉर्मेशन रिसीव्ड पे। तो अगर वो कंप्लेन होगा तो आप मजिस्ट्रेट से कहोगे कि आप इस पे एक्शन लीजिए, और अगर सिर्फ आपको सूचना देना है, क्योंकि आप कहोगे एक्शन लेना है, तो आप क्या बन जाओगे? कंप्लेनेंट, और आपको आगे की फॉर्मेलिटीज में कोर्ट के सामने पेश होना पड़ेगा। लेकिन आप कंप्लेनेंट नहीं बनना चाहते, आप क्या बनना चाहते हैं? इंफॉर्मेंट बनना चाहते हैं। सिर्फ सूचना देके आपने खत्म कर दिया, इंफॉर्मेशन आपने दे दिया।
कंप्लेन की सबसे एसेंशियल इंग्रेडिएंट यही है कि यू वांटेड द मैजिस्ट्रेट टू टेक द एक्शन ऑन दैट कंप्लेन। तो अगर विदाउट ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन कंसीडर हो गया तो उस इन्वेस्टिगेशन को हम इलीगल कहते हैं। अब मैं आपको सकीरी बासु बता रही थी कि सकीरी बासु में क्या हुआ कि एफआईआर लॉन्च नहीं हो रहा था। उस केस में कंप्लेन फाइल हुआ और कंप्लेन फाइल होने के बाद मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर करा इन्वेस्टिगेशन। जब मजिस्ट्रेट ऑर्डर करता है इन्वेस्टिगेशन तो वो इन्वेस्टिगेशन 156(3) में होता है। कहाँ होता है? 156 क्लॉज 3। आपने बहुत सुना हो कॉलेज में 156(3) की प्रोसीडिंग, सुना है? 156(3) बेसिकली ये होता है कि मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पे इन्वेस्टिगेशन हो रहा है किसी केस में, और पुलिस जब भी इन्वेस्टिगेशन करेगी संघीय अपराध में, ऐसा तो नहीं कि मजिस्ट्रेट के सामने आपने कंप्लेन फाइल किया और मजिस्ट्रेट ने इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दिया तो पुलिस ने सीधे इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। इन्वेस्टिगेशन करने का प्राइमा फेसाई रूल क्या है कि पहले पुलिस एफआईआर लॉन्च करेगी और फिर जो है पुलिस क्या इनिशिएट करेगी? इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट करेगी। अब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर तो हो गया, कंप्लेनेंट ने ऑर्डर करा लिया इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, लेकिन पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही थी उस केस में। ध्यान दीजिएगा, मजिस्ट्रेट के पास मैं गई और मैंने मजिस्ट्रेट साहब के सामने कंप्लेन फाइल किया। मजिस्ट्रेट को लगा कि मेरे केस में कंप्लेन विल नॉट बी सफिशिएंट, रादर द पुलिस शुड डू द इन्वेस्टिगेशन। मजिस्ट्रेट ने इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर लिया, पुलिस ने एफआईआर लॉन्च करके इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं किया या इफेक्टिव तरीके से नहीं कर रहा था। पुलिस कुछ कर ही नहीं रही थी, एफआईआर लॉन्च करके ठंडी पड़ गई थी। अब मैं क्या करूंगी? मुझे तो अपने केस में न्याय चाहिए। आई वॉन्ट जस्टिस। वॉट आई विल डू? वेयर आई विल गो? नो, just understand, this is what I wanted to make you understand. अब मुझे क्या कोई अलग ऑर्डर चाहिए? ध्यान समझिए, क्या मुझे कोई अलग ऑर्डर चाहिए? मुझे क्या चाहिए अब दोबारा से? कि पुलिस मेरे केस में इन्वेस्टिगेट करे। तो ऐसे परिस्थिति में क्या मैं हाईकोर्ट जाके हाईकोर्ट को बर्डन करूंगी केस से? नहीं। फिर मैं उसी मैजिस्ट्रेट के पास जाऊंगी जिसने की ऑर्डर किया है इन्वेस्टिगेशन का कि मेरे केस में इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर करिए। ये कोई नया ऑर्डर है? नहीं है। जब कभी भी किसी ऑर्डर को पास जो कोर्ट ने कर दिया और उसको एनफोर्स करने की कोई और ऑर्डर पास करना होता है, ऐसी परिस्थिति में हमारे पास कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं है तो हम हाईकोर्ट जाते हैं। लेकिन जो ऑर्डर पास किया है, क्योंकि हर मजिस्ट्रेट के पास एक एंसिलरी पावर होता है। एंसिलरी पावर मतलब उस पावर के अंदर का एक पावर। अगर हम इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकते हैं तो हम इस इन्वेस्टिगेशन को अच्छे तरीके से किया जाए ये भी ऑर्डर पास कर सकते हैं। क्लियर? तो ऐसे केसेस में विल नॉट गो टू हाई कोर्ट। लेकिन हमने ऑर्डर पास कर दिया इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, ठीक है, या बिना इन्वेस्टिगेशन मेरे ऑर्डर के मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के इन्वेस्टिगेशन हो गया, तो अब उस इन्वेस्टिगेशन को क्वैश कराना है। क्या कराना है? क्वैश मतलब खत्म कराना है। तो ऐसी परिस्थिति में हम कहां जाएंगे? हाई कोर्ट जाएंगे। और हाई कोर्ट कहां जाएंगे? अंडर सेक्शन 482 जो कहता है कि हाई कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर है। लेकिन कोर्ट ने इतना ब्यूटीफुली डिजाइन किया हुआ है, कहा कि इनहेरेंट पावर तो है लेकिन कब एक्सरसाइज करेगा? दो वर्ड्स हमारे लॉ में होते हैं इंटरप्रिटेशन में, एक होता है नॉट विथ स्टैंडिंग और एक होता है नथिंग। जब आप 482 पढ़ोगे तो वहां नथिंग लिखा है। क्या लिखा है? नथिंग। और नॉट विथ स्टैंडिंग नहीं लिखा। अब इन दोनों में फर्क क्या है? नॉट विथ स्टैंडिंग कि मैं मेरा जो पावर है इतना एब्सोल्यूट है कि सबके पावर को मैं ओवरराइड कर दूंगी, सबके पावर को मैं ओवरराइड कर दूंगी, कहीं कुछ भी लिखा हो कुछ नहीं, तुम किसी परिस्थिति में मेरे पास आओ, आई एम द किंग, राइट? इट इज नॉट। सीआरपीसी में लिखा है नथिंग। नथिंग का मतलब अगर कोई मैटर एक्सप्रेस प्रोविजन जो कोर्ट के दिए हुए हैं उनसे डील नहीं हो रहा है, तब आप मेरे पास आओगे और मैं आपको न्याय दूंगा, right? When the matter is not expressly or impliedly dealt by any court given in the CRPC, in those cases, the person can approach to the High Court and the High Court can exercise the inherent power for the end of the justice. For what? For the end of the justice. Why justice? Because that is the only aim and the goal of the court given in the cases. That justice should be delivered in the effective manner. So, in the non-cognizable cases, if the police does the investigation without the order of the magistrate, that entire investigation is considered to be illegal. Ab, in that situation, the accused can approach the High Court under Section 482 by presenting the application that the entire investigation is illegal and the High Court will quash the entire investigation, and again the police will approach to the magistrate. Here, this magistrate,
which we have discussed, who has the power to try the case or who has the power to commit the case for doing the fresh investigation. Clear? So write down. ये तो इनिशियल स्टेज में हो गया, समझ में आया? अभी ट्रायल वायल शुरू नहीं हुआ है, अभी ट्रायल नहीं। मान लिया ट्रायल शुरू हो गया, मजिस्ट्रेट साहब ने इग्नोर कर दिया, ध्यान ही नहीं दिया कि परमिशन लेके हुआ है कि नहीं, अक्यूज ने भी ध्यान नहीं दिया। ट्रायल के दौरान अंत में जजमेंट से पहले या अपील में ये मालूम चल जाए कि इस केस में, नॉन कॉग्निजेबल केस में, बिना परमिशन के इन्वेस्टिगेशन हुआ है, तब क्या होगा? वो दूसरी परिस्थिति। पहली परिस्थिति लिख लीजिए, इफ विदाउट ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट investigation is done by the police officer, the entire investigation is illegal, accused can file an application an accused will file an application raising the sorry, क्या लिखा आपने? An accused will file an application before High Court under Section 482. An accused will file an application before the High Court under Section 482 to get the entire investigation quashed. Get the entire investigation quashed. Clear? Get the entire investigation quashed. But this is in an initial stage. Bracket बना के लिख लीजिए. This is in the initial stage. Initial stage का मतलब अभी सिर्फ investigation हुआ, inquiry में pending है, ठीक है? It was held in the case of Keshav Lal versus State of Bihar. It was held in the case Keshav Lal versus State of Bihar, AIR 1996, Supreme Court. It was held in the case of Keshav Lal versus State of Bihar, 1996, Supreme Court. That in the case of illegal investigation in a non-cognizable cases, that in the case of illegal investigation, in the non-cognizable cases, that in the case of illegal investigation in the non-cognizable cases, the accused can file an application under Section 482 to the High Court. I'm repeating that in the course of illegal investigation in the non-cognizable cases, the accused can file an application under Section 482 to the High Court and have the entire investigation quashed. अब ध्यान दीजिएगा, ये तो आपको समझ में आ गया, इनिशियल स्टेज है, जस्ट इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई थी, मे बी केस इज पेंडिंग फॉर द इंक्वायरी और ट्रायल, गॉट इट? अब हाउएवर एट द लेटर स्टेज ऑफ द ट्रायल के आखिरी चरण पे या अपील में या बिफोर द जजमेंट इज प्रोनाउंस, ये ऑब्जेक्शन रेज होगा तो क्या होगा? किस केस में तो इन्वेस्टिगेशन की परमिशन ही नहीं थी, पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन किया और मजिस्ट्रेट जिसने संज्ञान लिया उसने भी ध्यान नहीं दिया, तो क्या होगा? Investigation will not be quashed generally, but इस केसेस में जिस भी मजिस्ट्रेट के पास ट्रायल चल रहा होगा या जिसके पास भी अपील होगा, ध्यान दीजिएगा, इनिशियल स्टेज में हम कहाँ जाते हैं? हम हाई कोर्ट के पास जाते हैं, है ना? क्योंकि अभी तक कोई भी जुडिशरी इसमें रोल में नहीं आया है, हमने ऑब्जेक्शन पहले ही रेज कर दिया है, तो हमारे पास कोई कोर्ट नहीं था, कोई फोरम नहीं था, तो हम कहाँ जाएंगे? हम हाई कोर्ट जाएंगे, क्योंकि हाई कोर्ट के पास क्या इनहेरेंट पावर है। और क्रिमिनल केसेस में, क्रिमिनल लॉ में किसके पास इनहेरेंट पावर होता है?
सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट के पास। क्यों दिया गया है इनहेरेंट पावर सिर्फ हाई कोर्ट के पास? क्योंकि इट वाज थॉट दैट because यहाँ पे right to life is involved, right? My personal liberty is involved. So it was thought by the parliament that the it should be curtailed, it should be exercised with the better wisdom, the people with the better wisdom. इसीलिए हाई कोर्ट को हमने क्या दिया है? इनहेरेंट पावर दिया है। ये इनहेरेंट है, कन्फर नहीं किया है, सीआरपीसी ने नहीं दिया है इसको। बाकी कोर्ट्स को पावर किसने दिया है? सीआरपीसी ने दिया है। तो इसीलिए हाई कोर्ट कब एक्सरसाइज करता है? फॉर द एंड ऑफ द जस्टिस। क्या हाई कोर्ट के पास किसी भी केस में इनहेरेंट पावर एक्सरसाइज करने की पावर है? नहीं, क्योंकि 482 की शुरुआत ही किससे हो रही है? नथिंग से। और नथिंग जहां भी लिखा होता है वो कैसा क्लॉज होता है? सेविंग क्लॉज होता है। मतलब वो किसको सेव कर रहा है? एक्सप्रेस प्रोविजंस ऑफ द सीआरपीसी। और इसका मतलब कोर्ट का इंटेंशन क्या था? एक्सप्रेस प्रोविजन और इनहेरेंट पावर के बीच में कंफ्लिक्ट नहीं पैदा करना, रादर हार्मोनी स्टैब्लिश करना, कि जहां पे कोई भी मैटर एक्सप्रेस प्रोविजन से डील नहीं होगा, उस मैटर को कौन डील करेगा? हाई कोर्ट डील करेगा। क्योंकि किसी भी केस में किसी भी कोर्ट का एम एंड गोल एक ही होता है, दैट इज जस्टिस, एंड जस्टिस शुड बी डिलीवर्ड इन द इफेक्टिव मैनर। अब in the later stage, if the objection is raised, the court per se will not quash the investigation. Rather, the court will see that कि क्या occasion हुआ है failure of justice to the accused? क्या इस इन्वेस्टिगेशन की वजह से जस्टिस को न्याय मिलने में फेल्योर हुआ है? और कोर्ट को लगता नहीं कोई फेल्योर नहीं हुआ है, या कोर्ट को लगता है कि फेल्योर हुआ है, तो जिस कोर्ट के पास मैटर रहता है उस स्टेज पे भी जाके एंटायर इन्वेस्टिगेशन को क्वैश कर देता है, और फिर केस वहीं घूम फिर के आ जाता है, मजिस्ट्रेट से जाके परमिशन लो और फिर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करो और फिर फ्रेश प्रोसीडिंग होगा। क्योंकि हमारे देश का जो कानून है वो कहता है, क्या कहता है? प्रोसीजर हैज टू बी फॉलोड, एंड इफ यू आर नॉट फॉलोइंग द प्रोसीजर द बेनिफिट विल बी गिवन टू द अक्यूज, है ना? यही तो है प्रोसीजरल डिफेक्ट में, तो यही तो होता है कि आपने प्रोसीजर नहीं फॉलो किया, बेनिफिट ऑफ डाउट किसको मिलेगा? अक्यूज को मिलेगा। गॉट इट? लेकिन अब ये जो लेटर स्टेज में जो इन्वेस्टिगेशन क्वैश होता है वो हाई कोर्ट में नहीं, जिस कोर्ट के पास केस होता है वही करता है। और ऐसा पावर कोर्ट्स को कहाँ मिला हुआ, दिया हुआ है? सेक्शन 465 सीआरपीसी में दिया हुआ। लिखिए, however the later stage of trial, however at the later stage of the trial or after the judgment, or after the judgment, or after the judgment, or after the judgment, however at the later stage of trial or after the judgment, or in appeal, or after the judgment or in appeal, if the accused raises the objection, if accused raises the objection, if accused raises the objection, then per se का मतलब तुरंत, then per se, comma, the investigation will not be quashed, then per se the investigation will not be quashed. Rather under section 465 of CRPC, rather section 465 CRPC, the court will examine, rather under section 465 CRPC, the court will examine whether there has been a consequent failure of justice to the accused or not. The court will examine whether there has been a consequent failure of justice to the accused or not. Whether there is a consequent failure of justice to the accused or not. Clear? So we have dealt non-cognizable cases. In non-cognizable cases, that arrest cannot be made without warrant. In non-cognizable cases, FIR is not lodged. What is lodged? NCR is lodged. Police NCR is lodged where?
where the offense has been committed in the local jurisdiction of the police station. Can police investigate? No. The police has to seek the permission from the magistrate. Which magistrate? The magistrate who is competent to try that case. How will you come to know that he is competent? Through schedule 1, or he can commit the case to the court of session for the trial. Up now we have seen that once the magistrate seeks the permission from the magistrate for investigation, he has all power of doing the investigation in a case as he was having a power in the cognizable cases, except power to arrest. If he has to arrest someone, he has to seek a fresh permission from the magistrate. Now, agar police officer has investigated a case without seeking the permission from the magistrate, that entire investigation will be considered to be illegal. If the objection is raised in the initial stage, the accused will go and file an application before the High Court, and High Court will quash the entire investigation. The judgment is given under Keshav Lal versus State of Bihar. If the objection is raised in the later stage ka matlab trial has already ended, judgment is pronounced, or in the appeal, in those circumstances, the entire proceeding will not be quashed. Rather, court will go and examine that whether there is a failure of occasion of justice or not. If yes, then at that stage also the entire investigation is quashed. Clear? Clear to everyone? Any doubt? अब ऐसे केसेस में क्या होता है, इफ मजिस्ट्रेट कैन ऑर्डर, अब होता क्या, बहुत सारा इसमें डिटेल है. सिंस इट वाज अ डेमो क्लास, आई जस्ट वांटेड टू टेल यू हाउ वी टीच, व्हाट्स आवर पैटर्न ऑफ टीचिंग, हाउ विल गिव यू द कंपैरिजन. whatever I teach in one, generally 2.5 hours का लेक्चर होता है, 2 घंटे पढ़ाते हैं, उसके बाद लिखवाते हैं, जितना पढ़ाया सब लिखवा देते हैं आपको. We give you the handouts, we give you the activities for daily classes. Suppose that यू आर रीडिंग द इन्वेस्टिगेशन. मैं इन्वेस्टिगेशन लगभग 25 दिन में पढ़ाती हूँ, बहुत डिटेल की, फिर कोई सवाल गलत नहीं हुआ कभी भी आपका. जैसे आपको एक कंपैरेटिव एनालिसिस दिया है हमने कि क्या एनालिसिस हुआ है, इसी तरह से आपको रोज कुछ ना कुछ हैंड आउट मिलेगा. इसको हम एक्टिविटी बोलते हैं. कभी केस लॉग, कभी आपको बुलेट नोट्स, कभी आपको सैम्पल नोट्स, कभी आपको लॉन्ग नोट्स, कभी आपको शॉर्ट नोट्स. जो भी मेरी पूरी टीम है उसका पूरा एफर्ट यही रहता है कि जब आप किसी भी विषय को पढ़ रहे हो तो आप कंप्लीटली उस विषय को शुरुआत से लेकर अंत तक इतने अच्छे से पढ़ो. चाहे आप यूपी दो, चाहे आप बिहार दो, चाहे आप झारखंड दो, इवन आप दिल्ली जुडिशरी दे रहे हो, तो भी आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो. बिकॉज एंटायर लॉ जो है इट्स बेस्ड अपॉन 3 थिंग्स: एक्ट, Bare Act, facts, the cases, and how tactfully you answer the question. So our aim and the goal is that to make you clear in the concept. यहाँ से क्लैरिटी के साथ ही बाहर निकलना है. अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो कोई फायदा नहीं है पढ़ा के. आप सुनते रहे, ज्ञान लेते रहे, बहुत ज्ञान है, देते रहेंगे हम आपको. ठीक है? एनी डाउट टू एनीवन? पक्का? एंड कर दीजिए.